Assalamu alaikum. Dear students, today I will tell you about the lab safety rule. As I have told you in the previous lecture that whenever you are working in a chemistry lab, specifically in a medicinal chemistry lab, that you have to follow some lab safety rule, as the medicinal chemistry lab can be hazardous if one is not aware of the potential hazards. So you have to follow some lab safety rule, not only for your safety but also for other people who are working there in the lab. So there are some lab safety rules which you have to follow while working in the medicinal chemistry lab. Number one is that all of you have to enter in the lab with lab coat. You have to wear the lab coat always, and your lab coat should be buttoned up from the front. Lab coat saves you and your clothes from the stain, spilling of hazardous solvent and chemical. Fabric of the lab coat should be such which will not catch fire easily and can bear the stains of acid or base on it. लैब कोट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले लैब कोट जो होना चाहिए वो दैट शुड बी बटन अप फ्रॉम द फ्रंट so that it will protect you and your clothes from the stains, from the spilling of hazardous solvent and chemical. और लैब कोट का जो फैब्रिक है वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए that will not catch fire easily and that can bear the stains of acid or base on it. Next lab safety rule is that you have to protect your eyes. Eye protection is very important while you're working in a chemistry lab. You have to wear some safety goggles and spectacles while working in chemistry lab, because it may be possible okay, when you are dealing with the chemical, the splash may enter into your eye and harm your eye. So you have to wear the goggles and spectacles. और अगर कोई भी स्प्लैश आपकी आई में एंटर होता है या फेस को हर्ट करता है तो आप क्या करेंगे कि आप उसको वॉश करेंगे विद द प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि जो केमिकल है वो डाइल्यूट होके आपकी आई से आई को हार्म ना कर सके. नेक्स्ट वी हैव शूज. ऑल ऑफ यू हैव टू मेक श्योर दैट जो शूज हों आपके वो कैसे होने चाहिए? वो क्लोज शूज होने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ग्लासवेयर ब्रेक होता है तो उसके जो ब्रोकन पीसेस हैं वो आपको हार्म ना कर सकें, आपके फुट्स को हार्म ना कर सकें. और कोई भी केमिकल जो है वो अगर आपके फुट पे गिरता है तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली शूज पे गिरेगा, वो आपके फुट्स को हार्म नहीं करेगा. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव फ्लेम्स. You have to take care when you use any open flame or light matches. Organic chemistry lab is the house of flammable organic solvent and you will be surrounded by them all the time, so the danger of the fire is always present. क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो फ्लेमेबल सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे और ये डेंजर हमेशा रहेगा कि जाहिर है जब भी आप फ्लेम यूज़ करेंगे तो आपको एहतियात करनी होगी. क्यों? क्योंकि जो फ्लेमेबल सॉल्वेंट हैं वो दे कैन इजीली कैच फायर. तो कभी भी आप फ्लेमेबल सॉल्वेंट के साथ डील नहीं करेंगे नियर दी ओपन फ्लेम. अच्छा जी, और कभी भी आप फ्लेमेबल सॉल्वेंट को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे बेंच सिंक पे. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव reagent and sample. You never ever use such reagent and the sample whose bottle is unlabeled. जो आपके reagent and sample bottle हैं they should be properly labeled. कभी भी आप कोई भी केमिकल या रिएजेंट ऐसा नहीं उठाएंगे कि किसी भी ऐसी बॉटल से नहीं उठाएंगे जो कि लेबल ना हो. और इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव फ्लेमेबल सॉल्वेंट. Flammable solvent, as I have told you कि flammable solvent are highly toxic. और हमेशा जो है चांस रहेगा जब भी आप flammable solvents को यूज़ करेंगे आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी बल्कि कोशिश नहीं, यू हैव टू मेक श्योर कि आसपास जो है वो ओपन फ्लेम ना हो. और यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट बाय पर्सन है वो किसी भी ऐसा जो केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म ना कर रहा हो जिसमें फ्लेम का यूज़ है. और इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स और सॉल्वेंट. कभी भी आप दो केमिकल्स को या दो सॉल्वेंट को मिक्स नहीं करेंगे और हमेशा क्या करेंगे आप
कि कभी भी डोंट पोर रिएजेंट बैक इनटू स्टॉक बॉटल। अगर आपने किसी बॉटल से रिएजेंट उठाया है तो आप उसको स्टॉक बॉटल में वापस पोर नहीं करेंगे। स्टॉक बॉटल क्या होगी? जो आपकी मेन बॉटल होगी केमिकल की, दैट इज नोन एज द स्टॉक बॉटल। तो आप कभी भी जो आपके पास केमिकल रिमेनिंग केमिकल है उसको स्टॉक बॉटल में एंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि जो आपने केमिकल यूज किया है उसमें कुछ कंटामिनेंट्स हो किसी एक्सप्लोजिव केमिकल के, तो क्या होगा कि अचानक से जो है आपके पास कोई भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर एंड नेवर एवर मिक्स एनी केमिकल, एनी अननोन केमिकल्स और सॉल्वेंट्स। अच्छा जी, और next is that you will never ever perform any experiment without the permission of your teacher। कभी भी आप अपनी मर्जी से कोई भी केमिकल रिएक्शन या जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वी हैव अवॉइड फूड इन द लैब। डोंट ईट और ड्रिंक एनी काइंड ऑफ फूड इन लैब। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री लैब है उसके इन्वायरमेंट में हमेशा आपके पास क्या होंगे? टॉक्सिक वेपर्स प्रेजेंट होंगे केमिकल्स के। तो आप कभी भी कुछ भी ना तो खाएंगे और ना ही पिएंगे while you are working in the chemistry lab, or it also contaminate your food, or the food can also contaminate the chemistry lab environment। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव केमिकल वेस्ट। कभी भी केमिकल वेस्ट को आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे बेंच सिंक पे। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर द डिस्पोजिंग ऑफ द केमिकल वेस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव so if you will summarize all these points that you have to follow this some safety rules, or by summarizing this, number one is that you have to wear lab coat and safety goggles, or don't eat in the lab and smoke in the lab, and always be careful while dealing with flammable solvent. Avoid contact with organic solvent and don't inhale solvent vapors. Replace the bottle of solvent and reagents to their own place. Read label before use and don't pour solvent and chemical in the sink। अच्छा जी, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आप क्या करेंगे? कभी भी आप पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, और नेवर एवर जो है वो ना तो आप क्या करेंगे? डोंट पैनिक, डोंट रन, और सबसे पहले क्या करेंगे? आप इन्फॉर्म करेंगे टीचर को। और नेक्स्ट वी हैव वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। if something goes in your eye or ingested something or feeling burn or irritation on skin, first step क्या होना चाहिए? that you have to wash it with the lots of water to remove that chemical by diluting it। और अच्छी तरह से आप क्या करेंगे? हैंड्स को वॉश करेंगे आफ्टर बिफोर डूइंग सो। अच्छा जी, अच्छा जी, फर्स्ट एड के लिए आप क्या मेजर्स करेंगे? इफ एनी केमिकल पास इन योर आई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? वॉश करेंगे आई को इमीडिएटली विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और कोशिश करेंगे जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए? वार्मर टेम्परेचर होना चाहिए। और जो फ्लशिंग करेंगे आइस की वो कितने मिनट तक करेंगे? अबाउट 10 to 15 मिनट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव वॉश दी वुंड विद वाटर इन केस ऑफ कट। अगर कोई कट जो है वो आपको हार्म करता है या वूंड क्रिएट करता है तो आप क्या करेंगे? आप प्रेशर सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर से वॉश करेंगे, और अगर ज़रूरत है तो आप अप्लाई करेंगे प्रेशर को इन ऑर्डर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। और इसके अलावा अगर स्मॉल बर्न्स हुए हैं इन ड्यू टू दी फ्लेम और कांटेक्ट विद दी हॉट ऑब्जेक्ट्स, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर किसी को स्मॉल बर्न्स हुए हैं ड्यू टू दी फ्लेम और हॉट ऑब्जेक्ट टच करने की वजह से कुछ बर्न क्रिएट हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उस इफेक्टेड एरिया को सबसे पहले आप डिप करेंगे। किस में डिप करेंगे? कोल्ड वाटर में, आइस चिल्ड वाटर में करेंगे या आइस में करेंगे अबाउट 5 to 10 मिनट्स। और सिवियर बर्न मस्ट बी ट्रीटेड बाय द फिजिशियन। नेक्स्ट वी हैव फॉर केमिकल बर्न। अगर केमिकल बर्न होगा तो क्या करेंगे? केमिकल बर्न जो है वो दो तरह से हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू दी एसिड और इट मे बी ड्यू टू दी बेस। अगर केमिकल बर्न होता है ड्यू टू दी एसिड तो आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। किसके थ्रू न्यूट्रलाइज करेंगे? बेस के थ्रू। और वो बेस कैसी होनी चाहिए? डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और इन केस ऑफ बर्न बाय एल्कली आप क्या करेंगे? आप वीक एसिड सोल्यूशन से क्या करेंगे?
वॉश करेंगे और वो वीक एसिड सोल्यूशन कौन सा होगा, सच एज 2% एसिटिक एसिड सोल्यूशन, 25% vinegar solution और 1% boric acid solution is recommended to neutralize the alkali. अच्छा जी, अप्लाई ये सब अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इफेक्टेड एरिया को वॉश करेंगे, फ्लश करेंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट, अगर कोई भी आप कोई भी केमिकल इंजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू हैव टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और आफ्टर दैट आप यू हैव टू सीक मेडिकल असिस्टेंस immediately and do inform the physician about the exact nature of the substance ingested. That's all about the lab safety rule. Next time we will have a look on the introduction of functional group estimation, or that's all about the today's lecture. And stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.